और हमें Brother. शुरुआत से जानना है कि प्रभु किस मकसद से इस दुनिया में आए थे। So we see that in Matthew chapter 1, मत्ती के अध्याय 1 में हम देखेंगे verse 21. वचन 21। He said, "And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins." वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। So Jesus has come to save us from our sins. यीशु मसीह आए हैं हमारे पापों से उद्धार देने के लिए। Sins means sins like anxiety, tension, no peace of mind, hatred. और पाप वो जो हमारे चिंता, हमारे नफरत और दूसरे के प्रति नफरत और वो सारे गलत काम And all sexual immorality और सारे जो लैंगिक अभिलाषाएं हैं, and telling lies. झूठ बोलना, All these things, these are the people in this world are full of sin. और ये जो बातें हैं ये दुनिया में पूरी तरह से पाप में डूबे हुए हैं। Even Jews, whom the chosen people of God, they could not keep all the 10 commandments. और इवन जो प्रभु के जो चुने हुए थे, जो जूस लोग थे, वो लोग ने भी प्रभु के आज्ञा को नहीं माना। They could keep it only outwardly, but the inside of their heart, they could not obey God. वो बाहरी तौर पर तो वो सब कर रहे थे, लेकिन उनका जो हृदय था, अंदर का जीवन पूरी तरह से खोखला था। Because of that, they were sinning inside their life. They were thinking all bad things. Their heart was very bad. और क्योंकि वह गुप्त रीति से पाप कर रहे थे, क्योंकि उनका हृदय बहुत ही बुरा है। So the only way is that somebody should pay the sacrifice for our sins. और इसका एक ही मार्ग है कि कोई पापों के लिए बलिदान होना बहुत जरूरी है। And Romans chapter 3 verse 23 says, "All have sinned and have fallen short of the glory of God." रोमियो के अध्याय 3 में 23 बताता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। This tendency to do sin comes to us right from childhood. It's because Adam, our first forefather, he sinned. और हम देखते हैं कि जो पाप का जो शुरुआत है, स्वभाव है, वो बच्चों से ही आना चालू रहता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आदि माता जो आदम से शुरुआत से ही पाप की शुरुआत हो गई। Nobody has to tell a child when he grows up not to, that lying is a sin, because the lying and anger and hatred starts right from childhood. और कोई भी इस बात को बताता नहीं है कि जो गुस्सा है वो पाप है। वो बचपन से ही ये सब आता है, गुस्सा और जलन, लोगों के प्रति नफरत। And all sin will separate us from God because God is holy and pure. और ये सारे पाप जो है हमें जीवित परमेश्वर से दूर कर देते हैं, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। And in spite of God giving them so many commandments, the children of Israel could not obey these commandments. और परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी आज्ञाएं दी, लेकिन प्रभु के उस आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं किया। That is why God had to send his only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross for us as the penalty for the sins of the old world. और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया कि सबके पापों के लिए उन्हें बलिदान हो। So when we believe on Jesus, that Jesus died for our sins, then all our past sins will be forgiven. और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, तो हमारे सारे पाप जो रहते हैं वो धुल जाते हैं। Because without Jesus, we would go to hell. क्योंकि हम बिना प्रभु यीशु के बगैर हम नरक की आग में चले जाएंगे। We know all our secret sins. We know and God knows. और हम सब जानते हैं, हमारे जो गुप्त रीति से जो पाप करते हैं वो परमेश्वर जानते हैं और हम जानते हैं। But when we believe in Jesus Christ, the power of sin is broken from our life. लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो पाप का जो बंधन है वो टूट जाता है। Then the Holy Spirit comes into our life and we become a new child, a new person. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं। We have to confess all our sins before God, and we should not hide our sins before God at all. और हमारे सारे पापों को
परमेश्वर के सम्मुख मान लेना चाहिए और कोई भी पाप हमें छिपाना नहीं चाहिए। And we must acknowledge our fault, confess our fault to the Lord, and ask Him to forgive us. और हमें अपने अंगीकार करके हमें क्षमा मांगने चाहिए और प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु हमें अपराधों से हमें क्षमा कर दे। And because Jesus was the Son of God and He lived a sinless life, we have to we have to accept that He died for us. और यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है, वो पाप रहित बिना पाप का उन्होंने जीवन जिया और वो हमारे लिए छुटकारा है। Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. So when we do that, a miracle takes place and we become a new person. और जब हम ये करते हैं तो हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं प्रभु के चमत्कार के द्वारा। All the guilt of the past goes away. और जितने भी पाप का जो दोषी महसूस होता है उससे हमें वो चला जाएगा। I know from my own experience, I was outwardly very good till I was nearly about 17 or 18 years old. और मैं अपने जीवन के अनुभव से मुझे मालूम है कि मैं जब 17 और 18 वर्ष के था, But I knew, I had read the Bible and I knew that I was a sinner inside because of all the bad things that used to come to my mind and I used to think about those things. और मैं जानता था कि मेरे हृदय में, मेरे अंदर में बहुत सारे पाप है और मेरे अंदर वो सब पाप मुझे बहुत दोषी महसूस करा रही थी। I used to want to follow God, but there was no peace and there was no love in my heart and there was no joy in my heart. और मैं प्रभु का पीछा करना चाहता था, लेकिन मेरे हृदय में शांति नहीं था, ना ही आनंद था। But then a day came when I had to confess my sin completely to the Lord and ask Him to forgive me. और फिर मैंने प्रभु से पूरी तरह से अपने पापों को मान लिया, अंगीकार किया और प्रभु से बोला, प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। And then God gave me the assurance that He has accepted my prayer and my past sins are all forgiven. और प्रभु ने मुझे उस पापों के ऊपर क्षमा पर विश्वास दिया और छुटकारा दिया और प्रभु ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिया। And He gave me a new life and then a new desire to read the Word of God and to obey God. और प्रभु ने मुझे फिर नया इच्छा दिया, प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु के साथ चलना, प्रार्थना करना, इस सारी नई इच्छा प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। So each one of us have to make a personal decision to follow the Lord. और हम हर एक को व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना है प्रभु के पीछा करने के लिए। Whether we are born in a Christian family or born in a non-Christian family. या हो सकता है प्रभु के मसीह में जन्म हुए हैं या आप मसीह के बाहर जन्म हुए हैं। All those who receive Him become His children. और जो भी प्रभु को ग्रहण करता है वो प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। So you have to make a personal decision in your life to follow Jesus Christ. और आपको अपने व्यक्तिगत रूप में जीवन में प्रभु से निर्णय लेना है प्रभु का पीछा करने के लिए। And if you are sincere from your heart, then God will send you the Spirit of God in your life and you will have the interest to follow the Lord and keep God first in your life. अगर आप पूरी तरह से गंभीर है तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा आपके हृदय में भेजेगा और आपको पीछा करने की वो इच्छा भी देगा। And Jesus Christ will save us from all the past sins and also the sins that are tempting us. और प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पाप क्षमा कर देंगे और वो भी पाप जो हमें लुभा रहे हैं। And now we have to make Him as Lord of our life. और हमें जीवन का प्रभु बनाना है। Lord means that now I'm going to listen to what God says. I'm not going to do what I do, what I like. प्रभु का मतलब जो प्रभु मुझसे कहेंगे मैं अब वही करूंगा, ना कि मैं अपनी जीवन की। Earlier I used to do what I like and then the devil used to encourage me to do what I like. पहले जो मैंने शैतान की बात मानी, अपनी इच्छा किया और जो शैतान हमें प्रोत्साहन देता था वही मैं करता था। And because I did what I liked, then I did all sorts of sin. और मैंने अपनी इच्छा से जो किया और उसमें बहुत सारे मैंने पाप किए। Kept bitterness towards others. What you said brother? Sorry. Kept bitterness, kadwapan. हाँ, बहुत सारा करवाहटपन आया। And would not forgive other people. और दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे।
And all sorts of evil things were there in our heart. और बहुत सारे ऐसे दुष्ट बातें, बहुत सारे ऐसे दुष्ट विचार हमारे जीवन में आ रहे थे। But when we accept Jesus Christ in our own life, the peace of God comes to our life, the love of God and the joy of God comes into us by the power of the Holy Spirit. और जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आनंद और प्रेम और शांति आ जाती है। And that is what Jesus Lord said in John chapter 3, that we have to be born again. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के अध्याय 3 में कहा है कि तुम्हें नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। Jesus, that is when we confess our sin and repent, we accept the Lord, the peace, the Holy Spirit comes into our life and we become born again. और यदि हम अपने पापों को मान ले, प्रभु को ग्रहण करें, तो परमेश्वर हमारे सारे पाप को क्षमा करेंगे और हम फिर हमें नया जन्म लेना। Jesus said in John chapter 3 verse 3, और यूहन्ना के अध्याय 3 में 3 वचन कहता है, Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। So unless you are born again, you will never enter God's kingdom. You will not go to heaven and not experience God in a personal way. और जब तक आप नया जन्म नहीं लेते हैं, तब तक आप परमेश्वर के साथ संगति में और पर्सनल व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाएंगे। Again, Jesus said in verse 7, do not marvel that I say to you, you must be born again. और 7वें वचन में भी कहता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए जन्म से जन्म लेना अवश्य है। So Jesus said, you must be born again and make a decision in your life, then the Holy Spirit will come into your life. और प्रभु कह रहे हैं कि आपको निर्णय लेना है कि मुझे नया जन्म लेना है और प्रभु हमारे जीवन का प्रभु बने। To be born again, we have to repent from our sins. और नया जन्म पाने के लिए हमें सबसे पहले मन फिराना बहुत जरूरी है। Repentance means to acknowledge every sin that I have done. और मन फिराव का मतलब जो सारे पाप जो मैंने किए हैं उसे मान लेना। And to open my mouth and confess it to God. और अपने मुंह को खोलना और प्रभु से अंगीकार करना। And ask God to forgive us. और प्रभु से बोलना, प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। And also ask God, tell to God, now I'm going to set everything right. और प्रभु से ये भी बताए कि प्रभु मैं अब सब जीवन में सही चीजों के लिए जीऊंगा। If you have got some enmity with somebody, go and make peace with that person. अगर आपने किसी के प्रति करवाहट है, जाके उसके साथ मेल मिलाप करके क्षमा कर दीजिए। If you have told bad things about other people, go and say sorry. अगर आपने किसी को बुरा बोला है या उसे सताया है, तो आप जाके बोले, उसे माफी मांग लें। You ask forgiveness from your parents. और अपने माता पिता से भी माफी मांगे। So that is a sign that you have repented. और यही एक चिन्ह है कि आपने सही रूप से मन फिराया है। And we have taken things from other people and borrowed things and not returned back. Go pay it back. अगर आपने किसी का चीज चुपके से रख लिया है और अगर आपको बता रहे हैं इससे मन फिराना है, तो जल्दी से जाके उन्हें लौटा दें। So this is also known as repentance in action. और ये भी कहता है कि मन फिराव पूरे कार्य के साथ हो रहा है। Just like Zacchaeus, he repented and then he said, whatever I've taken from other people, cheated other people, I'm going to pay back twice and 3 times and 4 times. और जैसे जक्कई के जीवन में हुआ, उसने बोला कि मैं अब 3-4 गुना लौटा दूंगा। So that God wants us to see that we are really mean what we say when we want to change or repent. और प्रभु हमें परखते हैं कि जो तुम कहते हो करते हो कि नहीं। So in Matthew chapter 1, chapter 3. और हम मत्ती के अध्याय 3 में जाएंगे। Verse 1 and 2. वचन 1 और 2। Now in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, repent, for the kingdom of God is at hand. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। So John the Baptist
who was living just before the time of Jesus, he told everybody to repent. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आने से पहले वो जीता था और लोगों को वार्निंग चेतावनी देता था कि मन फिराओ। And he said, the kingdom of heaven will come into your lives. और फिर स्वर्ग का राज तुम्हारे जीवन में आएगा। You'll experience peace and joy and love and goodness in your life. और फिर आप आनंद और प्रेम और शांति और परमेश्वर की भलाई को आप देख पाओगे। And verse 5 and 6 says, then Jerusalem was going out to him, and all Judea and all the districts around Jordan, and they were being baptized by him in the Jordan River as they confessed their sins. तब 5 और 6 वचन, तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा लिया। So the baptism means that they dip themselves under the water to say that my old past life is going and I'm going to make a new beginning to follow God. और बपतिस्मा का मतलब पानी, पूरी शरीर जो है पानी के अंदर डूबा जाता है और हम बताते हैं कि मतलब है कि ये पुराना जीवन मेरा मर गया है। So all those who were convicted about their sins came to John the Baptist and got baptized. और जितने लोगों ने अपने पापों के प्रति उन्हें रियलाइज और पश्चाताप हो रहा था, उन्होंने यूहन्ना के पास आया। Verse 7 says, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? और वचन 7, जब उसे बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। So a lot of these priests who had the Bible, were teaching the Bible, they were outwardly looking very good, but inside they were doing all wrong things. और ये जो बाइबल के जो शिक्षक थे पवित्र शास्त्र के, वो बाहर से तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इन जो उनके जीवन में, अंदरूनी जीवन में बहुत ही पाप थे। So John the Baptist knew they were all crooked inside, they were not straightforward. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जानते थे कि ये लोग बहुत ही खरूज से दुष्ट लोग हैं, अंदर से कपटी हैं। So that's why he asked them, who has warned you to run away, to escape from the anger of God? और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चेतावनी दिया, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। See, he called them the children of the devil, of the snakes. और हम देखते हैं कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उनको सांप के बच्चे कहकर पुकारते हैं। You know, the snakes have a nature of looking very innocent. They don't say anything. They keep quiet all the time. और हम देखते हैं कि सांप बहुत ही चुपचाप से रहता है, But their nature is very evil. लेकिन उसका जो स्वभाव होता है बहुत ही बुरा होता है। And God is going to judge us what is there inside our heart, if there is an evil nature or not. और परमेश्वर हमारा न्याय करने वाले हैं हमारे हृदय से, हमारे जीवन में कि कौन से बुरी दुष्ट बातें हैं या नहीं। Therefore, the apostle John the Baptist told them, verse 8, therefore bring forth fruit in keeping with repentance. और वचन 8, सो मन फिराव के योग फल लाओ। So that if we are repenting, that something should be set right in our own life. अगर हम मन फिरा रहे हैं तो वो हमें हमारे जीवन में, उस सारे क्षेत्र में हमें सही करना है। We all have sinned and we have done so many wrong things in our life. और हमने बहुत सारे जीवन में अपराध पाप किए हैं। So we have to set certain right the things, that the wrong things that we have done. और हमें वो सारी बातों को जो हम करते हैं उससे सही करना है, उससे मन फिरा लेना है। I had to do a lot of I didn't do major things, but I had robbed, stolen some small things from my neighbors. I had to go and return it. और मैंने अगर किसी नेबर या पड़ोसी से हमने कुछ चुराए है या तो उसे हमें जाके वापस दे देना है। If I talked rudely to other people, I have to go and confess to my neighbors and people that I did the wrong thing. अगर हमने किसी के से साथ बुरी तरह से बर्ताव करके उससे बात किया है, उसे धोखा दिया है, तो हमें जल्दी से जाके उनसे सॉरी, माफी मांग लेना है। Then only God will fill me with the Holy Spirit. तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे।
And then I will get a new joy and peace, and the kingdom of heaven will come into my life. और फिर क्या होगा? फिर हमारे जीवन में आनंद और प्रेम और शांति आ जाएगा। परमेश्वर की भलाई हम अपने जीवन में देखेंगे। When we sin, we experience a lot of depression and gloom in our life. और जब हम पाप करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही दोषी महसूस कराता है। हम पूरा दुख में रहते हैं और पूरे निराशा जीवन जीते हैं। When we sin, we become bad and angry and become very depressed and sad. और जब हम पाप करते हैं हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और गुस्सा भी आता है और बहुत सारे बुरे काम कर बैठते हैं। But when we confess our sin, God takes away the sin, and then peace and joy and love comes into our life. और जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और शांति और प्रेम देता है। And many of the Pharisees, the religious people, they tried to hide their sin. और बहुत सारे जो फरीसी लोग थे जो अपने अपने पापों को छिपा रहे थे। They like to show people that they were good people. और वो लोगों को दिखा रहे थे कि हम लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छा लोग हैं। And because they did not confess their sin, they went straight, they were going to go to hell. और क्योंकि उन्होंने अपने पापों को नहीं माना, वो सीधे नरक की ओर चले गए। When I was young, I knew that I had done lot of sin inwardly. और जब मैं जवान था और मैं जानता था कि नए में प्रभु में आया था, मुझे पता था कि मैंने अंदर अंदरूनी जीवन से बहुत सारे पाप किए हैं। And then when I used to stand on the local train in Bombay and the train would go, I knew if I fall down, I'll go straight to hell. और जब मैं लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो मुझे अंदर ही अंदर आवाज आ रहा था, अगर मैं आज मर जाऊं तो मैं सीधा नरक में जाऊंगा। So that is why that brought me to the Lord and asked God, Lord, have mercy on me. तब मैंने बोला, प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर हो। And the God forgave me and gave me the grace and the help not to do these sins again. और फिर प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया और परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया, अब हमें फिर से पाप नहीं करना है। So this is the mercy of God and the grace of God that works in our life when we come to Jesus Christ. और यही है परमेश्वर का प्रेम और भलाई, और हम यीशु मसीह के पास आए। John the Baptist baptized a lot of people in the river Jordan. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉर्दन नदी में बहुत लोगों को बपतिस्मा देता था। And after that, Jesus also came and he also preached the same message in Matthew chapter 4, verse 17. और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भी आते हैं और वही प्रचार बताते हैं। वचन 17 देखेंगे। And from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of God is at hand. उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। So that we have to set up, repentance means, Lord, all the wrong things that I'm doing, I repent and confess it, and I'm going to take an about turn, and I'm going to do the right thing in the sight of God. मन फिराव का मतलब है, प्रभु अब मैं आज से वही करूंगा जो सही है और मैं उस पूरी तरह से उससे मुड़ जाऊंगा। And we start doing that, then the Holy Spirit comes into our life. अगर हम ऐसे करते रहे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। And to mark this decision, we take water baptism. और ये हमें sorry brother, to say that we are serious, we keep on taking water baptism. और ये एक चिन्ह बताता है कि आप सही में प्रभु नया जन्म पाना चाहते हैं। Because Jesus himself said, this is the first commandment in Matthew chapter 28, the last verse. और यीशु मसीह ने खुद ही कहा मत्ती के अध्याय 28 में, chapter 28, verse 19. वचन 19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe, 28 verse 19 and 20, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। So Jesus has given you and me the command
to baptize people, and all people who want to follow Jesus Christ should get baptized. और यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है कि जो प्रभु का पीछा करना चाहते हैं उन्हें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। Baptism means that my old person, the old person that I have desires, I am going to die to that, and now I'm going to follow Jesus Christ. बपतिस्मा का मतलब यह होता है कि अब मेरा पुराना मनुष्य तत्व, पुराना मनुष्य चला गया, मर गया, अब हम नया मनुष्य बन गए हैं। I'm going to be a disciple of Jesus Christ. और मैं अब प्रभु का यीशु शिष्य बन के रहूंगा। If God shows me some wrong things in my life, I'm going to acknowledge it. I'm not going to hide it, and I'm going to come to God for mercy and for the grace of God to help me to overcome the sin. और प्रभु अगर हमारे पापों को दिखाते हैं तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु से अनुग्रह मांगना चाहिए, और परमेश्वर दया करके उन्हें क्षमा करेंगे। And then I will want to obey whatever the Lord Jesus Christ has commanded me, and to live my life to please the Lord. और फिर जो भी प्रभु मुझे आज्ञा देंगे, वचन देंगे, उसका पालन करना, पूरे दिल से हमें पालन करना है। And I'm going to be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। God is one, but God has got three. God has three manifestations in one person. परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर का तीन रूप है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So God, the Holy Spirit, is there in this earth now, and Father and Son are in heaven. और पिता और पुत्र जो है स्वर्ग में है, और पवित्र आत्मा यहाँ पर है। When Jesus was in this earth, the Father and the Holy Spirit were in heaven, and Jesus was in this earth. और जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस पृथ्वी पर थे तो पवित्र आत्मा और पिता स्वर्ग में थे। And he lived like you and me as ordinary human being, but he never sinned even once with all the temptations of life. यीशु मसीह आपके और मेरे तरह बहुत साधारण जीवन जिए, लेकिन कभी भी उन्होंने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। And because of that, he can be our example. He can forgive. Our sins can be forgiven. और इसलिए यीशु मसीह हमारा उदाहरण है और हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। And then he'll show us how to live this new life. और फिर प्रभु आपको दिखाएंगे कि कैसे ये नया जन्म मुझे जीना है। By the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। So from now on, we have to live according to all the commandments which Jesus gave. और आज से हमें प्रभु जो भी हमें आज्ञा दिया उनके अनुसार ही हमें जीना है। Like Matthew chapter 5, 6, 7. जैसे मत्ती के अध्याय 5, 6, 7। And all that the Lord Jesus has taught us in the epistle and the Gospels, and also in the letters of the Apostle Paul and Peter and John. और प्रभु ने जो सुसमाचार बताया है और प्रेरितों के द्वारा जो बताया गया है और जितने भी नए नियम लिखे गए हैं, उस सब के द्वारा हमें पालन करना है। Because the Bible is written by the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। So now we are not going to live as we like, but live according to please our Lord Jesus Christ who died for us. तो अब से हमें अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीना है, लेकिन प्रभु जो कहेंगे उन्हीं के अनुसार मुझे आपको जीना है। We are going to hate sin and love what God wants, love God. और हमें पाप से पूरी तरह से घृणा करना है और अब परमेश्वर के जो नजर में सही है उससे प्रेम करना है। We have to fear God and not fear men. और हमें परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से नहीं डरना है। And because of that, we become the children of God. और इसका कारण यह होगा कि हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। So we become people who God has a wonderful plan, and God will take care of you and me. और हम परमेश्वर के लोग बन जाएंगे, परमेश्वर हमारा आपको और हमारा ख्याल रखेंगे। And as we heard today morning, that God will take care of every detail of our life, and He will put a hedge around us, a circle around us, and take very good care because we are His own personal children. और आज हमने सुबह में सुना था कि प्रभु हमें ख्याल रखते हैं, वो हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांध के रखते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें संभालते हैं। Earlier we were children of the devil because we used to do all the wrong things. So now we become children of God, and God takes the responsibility to look after us and to feed us with the word of God.
पहले हम सब शैतान के बंधन में थे, जालों में फंसे हुए थे, लेकिन अब परमेश्वर जो कहेंगे हमें वही करना है। And we can walk with confidence in this world that we are the children of God, the sons of God. और हमें पूरे ढाढ़स बांध के, हियाव बांध के हम प्रभु से विश्वास चल सकते कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। So it is a wonderful privilege. There are very, very few people who follow Jesus Christ. और ये कितना बढ़िया बात है कि हम प्रभु के यीशु मसीह का पीछा करने वाले हैं। So if God has put the desire in your heart, you are a very blessed person. और प्रभु ने ही है जो आपके हृदय में ये इच्छा डाली है, और क्योंकि प्रभु आपको आशीष करे। God will fill us with the Holy Spirit and enable us to live this life in a way that to live a pure and holy life in this world. और परमेश्वर हमें इस मार्ग में ले चलते हैं कि हमें पूरी तरह से पवित्र और निर्दोष और सही जीवन जीना है। So it is a very blessed life to follow Jesus Christ. और ये बहुत ही आशीषित जीवन है हम प्रभु का जब यीशु मसीह का पीछा करके जीते हैं। Then we will give God the first place in our life. और हम परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देंगे। And then we will read the word of God. और फिर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। To know what God's will is in our life. और हम उसके द्वारा हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। We will thank God and praise God and pray to God. और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को स्तुति देंगे। Because God is our Father now. और क्योंकि परमेश्वर जो है मेरा पिता है। Jesus told us, when you pray, say, Our Father who's in heaven. और प्रभु यीशु ने भी बोला कि जब तुम प्रार्थना करो कहो, हे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। Now you got a heavenly Father to look after you. और आप स्वर्गीय पिता आपको ख्याल रखेगा, आपको पिता मिल गया है। And then we become more and more obedient every day to do His will and not our own will. और हम हर दिन प्रतिदिन प्रभु की इच्छा को पूरी करते रहेंगे, ना कि अपनी इच्छा को। And every day, and then God has given us a fellowship, a church of the people who follow God, that is known as the church. और प्रभु ने हमें परमेश्वर के लोग कलीसिया हमें दिया है, और हमें इनका पीछा करते हुए प्रभु का पीछा करना है। And we get encouragement and correction, and it is a blessed place where we all are going to one place, to the kingdom, to meet Jesus, who is also our King. क्योंकि हम सब एक ही परमेश्वर के राज में यीशु मसीह से मिलने जाने वाले हैं, तो हम सब एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, मिलते हैं, प्रभु के धन्यवाद देते हैं। And we also have the desire to tell other people about the Lord Jesus and to invite them into the kingdom of God. और हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि प्रभु के बारे में दूसरों को भी बताएं। All our relatives, our friends, we want to tell them about Jesus. और हमारे जितने भी परिवार है और संबंधी है और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनको भी हमें प्रभु के सुसमाचार को बताना That चाहिए। Jesus is the answer for all our problems and to save us from our sins. यीशु मसीह ही हमारे सारे समस्या और दुख तकलीफ का वही हमारा सॉल्यूशन, वही हमारा उत्तर है। So, my dear brothers and sisters, all those who desire to take baptism, you thank God that God has saved you from your sins by confessing it. तो मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आप परमेश्वर की इच्छा प्रभु ने जो डाला है यीशु का पीछा करने के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए। God will give this desire and He will encourage you more and more and every day. और प्रभु आपको ये इच्छा देंगे और हर दिन आपको प्रोत्साहन देंगे कि प्रभु का साथ चले। In the world, you will have a lot of difficulties and problems from people around you. और इस संसार में आपको बहुत सारे दुख तकलीफ कलेश होंगे जो आपके आसपास से सताएंगे, बहुत सारे कलेश होंगे। Jesus himself had a lot of troubles and problems, and also the apostles and all those godly people had lots of troubles, but God was there with them. प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे उनके साथ भी बहुत सारा सता हुआ, और सारे जो प्रभु के लोग हैं, ईश्वरीय जन है, सबके साथ सता हुआ। We have only to live for a short time in this world now. After that, it's all eternity. और हम यहाँ पे सिर्फ थोड़े समय के लिए, लेकिन हम प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेंगे। We have to live for millions of years. It all depends how we live right here. और हम प्रभु के साथ करोड़ों अरबों बरस प्रभु के साथ रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कैसे जीना है वो ध्यान देना है। The greatest thing, it is such a privilege to follow Jesus Christ.
और ये बहुत अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु यीशु का पीछा करें as sons and the daughters of the living God. और जीवित परमेश्वर के बेटी बेटियां होने का। So, my dear brothers and sisters, I pray that you will give your life completely to the Lord and follow Him. और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहता हूँ अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो। And next session we will take, you'll also have a time to speak your testimony as to what God has done in your life and how God has changed you. और अगले जब हम सभा में मिलेंगे तो आप अपने जीवन से गवाही दे सकते हैं कि कैसे प्रभु ने आपको बदला है। So now each one of us can pray one by one, thanking God and praising God, and say that we want to live for you. और आप सब भी एक एक करके प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। आप प्रभु से बता सकते हैं। So anybody can start one by one. You start, open your mouth and thank God and praise God for God's goodness and mercy over your life and how God has forgiven your sins, and confess and open your mouth and praise God. कोई भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे प्रभु की दया और अनुग्रह आप पे हुआ। Anybody can start. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, जो हम आपकी इच्छा करने के लिए हम तैयार है पिता परमेश्वर। हम पीछे कभी ना हटे पिता परमेश्वर। पिता, हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा होने पाए पिता परमेश्वर। स्वर्ग में विराजमान खुदावन यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर। पिता, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर हम आपको देते पिता परमेश्वर। जैसे तुमने पिता परमेश्वर इस संसार से हमें बचाया पिता परमेश्वर। इस संसार में हम जो नहीं जानते थे पिता परमेश्वर, तूने हमें इन पापों पिता परमेश्वर जो पश्चाताप करने के लिए जो हमें मौका दिया पिता परमेश्वर, और आपके राज्य में आने के लिए हमें इनवाइट किया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो हम इन पापों से मन फिराए पिता परमेश्वर और हमेशा आपके राज्य में आनंद काल तक रहे पिता परमेश्वर। पिता, हम ये पिता परमेश्वर कि हम आगे भी कभी गलती ना करें पिता परमेश्वर। पिता, हम एक शरीर में पिता परमेश्वर हम बहुत से ऐसे गलतियां करते थे पिता परमेश्वर, जो हम बाद में सोचते हैं कि हमसे ऐसा कैसा हो गया पिता परमेश्वर। फिर भी आप हमें क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप दया के सागर है पिता परमेश्वर। पिता, आप करुणा और महिमा योग्य है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी इच्छा हमारे जीवन से हो नहीं पाए पिता परमेश्वर। पिता, आपके हर एक वचन को पिता परमेश्वर हम अपने साथ लेके चले पिता परमेश्वर, अपने हृदय में लेकर चले, ताकि हम आपकी इच्छा को कर सके पिता परमेश्वर। सारी महिमा और सारा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के अच्छे दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता। आज के दिन में हमें जीवित रखा आपने प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता आपके अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में शांति दिया, आनंद दिया, प्रेम दिया परमेश्वर पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर पिता। हमने आपको नहीं चुना परंतु आपने हमें पिता परमेश्वर चुना है परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी, आपने हमें पिता यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध किया और गले से लगाया परमेश्वर पिता। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपका कि आप मेरे जीवन में आ गए परमेश्वर प्रभु, और आपने मेरे जीवन को बदला मेरे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके बड़े नाम को हम ऊंचा करें परमेश्वर पिता, ऐसा मांगते प्रभु जी आपसे परमेश्वर पिता। सारा आदर मान गौरव महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमेशा हमारे जीवन में प्रभु आप बढ़े और हम लोग घटे परमेश्वर प्रभु। अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ पिता, आमीन। आमीन, आमीन। और कोई है? Anybody else? Open your mouth and you have to confess before the Lord and thank Him. Rishabh, is there? धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के अच्छे दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु हमें प्रभु जी अपने पास बुलाया प्रभु, अपने पास प्रभु आप हमें लेकर आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रभु अपना अनुग्रह हम पे किया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु
क्या आपने हमें प्रभु पापों के बारे में समझाया पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु कि परमेश्वर पिता आपने प्रभु मुझे प्रभु अपनी महिमा के लिए चुना प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं इस जगत में खोया हुआ था प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि परमेश्वर पिता आपने प्रभु मुझे प्रभु अपनी बड़ी महिमा के लिए चुन लिया है प्रभु। हाँ प्रभु जी, अब से प्रभु मैं आपके लिए जीऊं प्रभु, आपकी महिमा करूं, आपके पीछे चलूं प्रभु जी, और प्रभु आपकी प्रभु राज्य के लिए प्रभु प्रभु जी मैं इस्तेमाल हो सकूं प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करता प्रभु, मैं बपतिस्मा लूं प्रभु, और तेरे राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जीव प्रभु जी, तेरी महिमा करूं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा गुए दिए प्रभु, आपने प्रभु जी अच्छी कलीसिया दी, इस बात का धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। Donna also can pray. All those who want to commit their life to the Lord. धन्यवाद 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 स्वर्ग में आत्मा में आसमान खुदा पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती पिता। सच में पिता आप महान है पिता, और हमारे जीवन में आए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता सब कुछ मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता, जो भी हमसे कोई गलती हो गई हो पिता तो हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता। सारा आदर मान महिमा आपको देती पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती पिता, आमीन। You are in mood. Anybody else wants to give thanks to God? Open your mouth. Ask God's forgiveness, ask God's love in your life. Okay, now since our time is up, we get contact you later, and then when the next meeting is, अगला मीटिंग कभी होगा वो बताएंगे। आप लोग प्रभु का धन्यवाद करके रहना। जब आप यीशु का पीछे करता है तो आप शैतान बहुत हमला करेंगे आपके मन में, एंड बहुत डाउट डाल देंगे, आप अच्छा है, ये है, सब पाप को याद दिलाएंगे। तो आपको क्या ही कहना है कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं तो शैतान का बच्चा था, आप ही की दया से मैं ऐसा हूँ। प्रभु आप में, आपसे मेरा स्ट्रेंथ है, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु का लहू से हम बिल्कुल सुरक्षित है शैतान की हमला से। सो लेट अस थैंक हिम एंड प्रेज। प्रभु को धन्यवाद करके रहना कि मैं पापी हूँ, प्रभु ने मुझे बचाया, मैं पापी हूँ, मैं प्रभु ने मुझे बचाया, मैं अभी प्रभु का हूँ। I belong to the Lord. So let us always say that with a humble heart, come to him, and God will completely save us, completely हमको बचा देंगे, और शैतान सब डर से हमको बचा देंगे। So नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बता देंगे कभी आप फ्री होगा, करेक्ट टाइम, रात का टाइम में भी अच्छा रहेगा। तो तैयार रहना। बाइबल का जो हम लोग ये वर्सेस बताया उसके बाद पढ़ लीजिए। और एक वो पुस्तक है ब्रदर जैक ने लिखा है, एक अच्छी नींव, गुड फाउंडेशन। यू रीड दैट दोस चैप्टर्स केयरफुली because it's an important decision in your life to follow the Lord. So let us give our life and we will experience the wonderful power of the Holy Spirit in each one of our lives. So thank you, brothers and sisters. God bless you and good night, and pray for one another. Okay? Thank you, brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.